اس لیے فرما دیا کہ ان الایمان ہوا تصدیق بالقلب، اپنے دلوں میں پہلے ایمان پیدا کر، جب دل میں ایمان آ جائے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز نکل جائے گی، خون ختم ہو جائے گا، دل کو کاٹ دو گے تو اس کے چوتھے خانے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملے گا جو لوتھڑے کی طرح ہوگا، جسے جمع ہوا خون کہتے ہیں۔ بس وہ نظر آ جائے تو اسے عربی میں محجحون کہتے ہیں، اسے عربی میں محجحون کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہم ارزق، توجہ ہے کہ نہیں؟ کہاں کہتے ہیں؟ جب آپ زیارت عاشورہ میں سجدے میں جاتے ہیں کہ پروردگار حمدون الحسین، امام حسین کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، کہاں تک؟ محجہم دون الحسین، یہاں تک کہ ہمارے دل یا علی محمد محمد وعجل، تو میرے مولا کائنات کے لیے ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لقدمی مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلهم محجہم دون الحسین۔ ہمارے جسم کا سارا خون بہہ جائے، ہمارے دل کو درمیان سے کاٹ دیا جائے، ہم جب تک محجہم نہ ہو جائیں تب تک امام حسین اور ان کے اصحابوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں۔ سمجھ میں آیا کہ یہ ہے ایمان جو دل کے اندر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ود سے لفظ نکلا مودت، سورہ مریم میں لفظ ود استعمال ہوا، اور دوسری جو ہے مودت کی آیت میں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، توجہ ہے کہ ہمیں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے ماں سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کرتے۔ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو تو پروردگار تمہیں ایک تحفہ دیتا ہے، اور وہ تحفے کا نام سورہ مریم کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے ودہ، اللہ تمہیں محبت دیتا ہے۔ جب وہ محبت دل میں چلی جاتی ہے تو وہ وہاں رہ کر مودت بن جاتی ہے، جب وہ مودت بن جاتی ہے تو مر جاتا ہے مگر اپنے آپ کو اہل بیت سے جدا نہیں کرتا۔ یہ اصل مقام ہے مودت۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کا ایمان داخل القلوب ہوتا ہے، ایمان دل میں ہو تو جہاں جہاں پیوریفائی ہو کر خون جائے گا وہاں وہاں نس میں ایمان جائے گا، جس نس میں ایمان جائے گا تو پھر آنکھ وہی دیکھے گی جو خدا چاہتا ہے، پھر کان وہ سنیں گے جو خدا چاہتا ہے، پھر زبان وہ بولے گی جو خدا چاہتا ہے۔ یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ اطاعت الہی کا معیار کیا ہے۔ انما المؤمنین، بس مومن وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جتنا ایمان اللہ پہ لاؤ اتنا ایمان میرے رسول پہ لاؤ۔ وجہ ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اتنا ایمان میرے رسول پہ لاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کیا ہے یہ میرا رسول بتائے گا، ایمان میں کیسے جیا جاتا ہے یہ میرا
रसूल बताएगा। ईमान की हालतें क्या है ये मेरा रसूल बताएगा। ईमान दिल में होगा तो फिर इजहार ज़बान पर होगा। पहले इमाम ने कहा इन्नल ईमान तस्दीकुल बिल क़ल्ब व इक़रारुन बिल लिसान। हमारे तीसरे इमाम ने कहा अद्दीन लाइकुन बिल लिसान, के दीन आखिरी ज़माने में सिर्फ लोगों की ज़बानों पर चस्के के लिए रह जाए, यानी कि मेआर ईमान, यानी ईमान सिर्फ ज़बान तक। ईमान का सबसे अजीम तरीन पहलू इकरारुन बिल लिसान के बाद अमल हो बिल अरकान। आपका हाथ उठे तो लगे ईमान उठा, आप घर से निकले तो लगे कि ईमान निकल रहा हो जाए कि नहीं। ईमान इतना आसान नहीं है, इसलिए कहा ए मेरे हबीब इनसे कह दो ईमान नहीं लाए, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करना और है, ईमान में आना और है। जब तीनों हालतों से वजूद इंसान ईमान में से गुजरता है या गुजरती है, तब जाके वो मोमिन बनते हैं। मोमिन लफ्ज़ मोमिन नहीं है, काले कपड़े मोमिन नहीं है। सबसे पहले किरदार मोमिन बना, तुम्हारे पसीने में से बदबू ना आए, ईमान की खुशबू आए, तुम्हारा पसीना भी ईमान की दलील बन जाए, तुम्हारे जिस्म का कतरा कतरा ईमान में निचला होना चाहिए। यह है ईमान। और जो ईमान ले आता है तो वो जो है कि नहीं। और वक्त के इमाम से अपना ईमान छुपाना आसान नहीं है, ये मेरी बात याद रखिए, क्योंकि इजमाई तौर पर इस अज़ा खाने की सालाना मजलिस तवज्जो है मेरी बात की कि नहीं, जिसकी निस्बत इमाम हश्तम के साथ है। इसीलिए आप देखिए पहचानते हैं। एक अलीयन मुर्तज़ा, ठीक है कि नहीं, एक अली ज़ैनुल आबिदीन, एक अली रज़ा, एक अलीयुन नक़ीब। समझ में आई कि नहीं? चार अली, चारों के टाइटल अलग, देखने में एक, हिम्मत में एक, शुजाअत में एक, सखावत में एक, अदालत में एक, बयान में एक, अंदाज में एक, वसायत में एक, शुजाअत में एक, इबादत में एक, हर लिहाज से एक है, इसमें भी एक है। लेकिन एक अली मुर्तज़ा हो गया, एक अली ज़ैनुल आबिदीन हो गए, एक अली रज़ा हो गए, एक अली नकी हो गए। सवाल नहीं करेंगी कि क्यों ये अलग-अलग टाइटल हुए, जब इल्म एक है, इल्म एक है, फसाहत एक है, बलागत एक है, शुजाअत एक है, इबादत एक है, रकू एक है, सजूद एक है, जागना एक है, सोना एक है, करवट एक है। हर अंदाज में कोई गुमान नहीं करता था कि कभी ज़माना रिसालत से खाली हुआ है। क्यों? क्योंकि नबी ने कहा था कुल्लू ना मुहम्मद, हर एक का अंदाज अंदाज़ मोहम्मद। यार बात तो बहुत करबला से भी आगे जानी चाहिए। मोहम्मद आले मोहम्मद अज्जल अलीयुन मुर्तज़ा, अली मुर्तज़ा, समझ रहे कि मुर्तज़ा लफ्ज़ रज़ा से ही मुर्तज़ा, रज़ा से ही मुर्तज़ा।
कीमत देकर रजा खरीदी, वजह क्या नहीं, कीमत देकर जो खुदा की रजा खरीदे, हो जाए कि नहीं, आम बात नहीं है। मिनन्नासी मन यशरी 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 नफ्सहु इब्तिगा, यशरी नफ्सहु इब्तिगा, मानी क्या है, वो रात में बेचता रहा। यशरी का मानी क्या है, बेचता रहा। तो आम हवाओं में बेचा नहीं जाता। हवाओं में कोई बेच रहा था तो वो जो है कि नहीं, वमिनन्नास, जो ये मैं यशरी अपना नफ्स बेच रहा, नफ्स हो तो जो है कि बेचता रहा सारी रात। जागते हुए तो बंदा तिजारत करता है, वो कौन है जो सो के करे। कितनी अजीम मंजिल है, चूंकि यहाँ लफ्ज़ मरज़ातिल्लाह इस्तेमाल हुआ है, मीम से अल्लाह ने रजा को बेचा, मरज़ातिल्लाह, इसलिए वो मुर्तज़ा हुए। बात की गहराई में पहुंचे क्या नहीं, वो इसलिए मुर्तज़ा हुए। और जिस पर खुदा अपनी रज़ाओं को फिदा कर दे और निछावर कर दे, वो अली रज़ा हो। इसलिए आपको इमाम रऊफ कहा जाता है। कुरान में भी अल्लाह ने लफ्ज़ रऊफ अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया है ना, इन्नल्लाह बिकुम लरऊफुर रहीम, मेरी ज़ात है जो रऊफुर रहीम है। एक ज़मीन पर ज़ात है जो इमाम रऊफ, जो इमाम रऊफ है। इमाम की रऊफियत देखो फिर पता चले रब कितना रऊफ है, रब कितना बुलंद है, रब कितनी रऊफियत से अपने बंदों को बख्शता है, अपने बंदों को माफ़ करता है। तो जो है मेरी बात की कि मौलाए कायनात, खालिक कायनात ने अपने नुमाइंदों को चुन चुन कर ज़मीन पर भेजा। 1,24,000 अम्बिया आए। बहुत तवज्जो चाहती हूँ आज की मजलिस में, 1,24,000 अम्बिया रोए ज़मीन पर आए हैं कि नहीं, बोलिए आए हैं ना। सब ने फैसले किए कि नहीं, अपनी उम्मत के फैसले किए कि नहीं, बोलिए। हज़रत आदम ने अपने ज़माने में किए, हज़रत नूह ने अपने ज़माने में, हर नबी ने फैसले किए कि नहीं, हर नबी ने फैसले किए गवाहों के दरमियान। गवाह दो मैं फैसला करूँगा, गवाह दो मैं फैसला करूँगा। तो जो बहुत चाहती हूँ, ज़रा हट के मजमून होता है ना तो ज़रा घबराहट सी होती है, ठीक है कि नहीं। गवाह पेश करो मैं फैसला करूँ, नुमाइंदे वो भी खुदा के सारे करें। लेकिन हज़रत दाऊद को खुदा ने कहा, दाऊद तूने गवाहों से फैसले नहीं करे, तूने अपने इल्मे नबुव्वत से फैसले करे। वाहिद 1,24,000 अम्बिया, सिर्फ हज़रत दाऊद को ये इज़्ज़त था कि वो जितने भी फैसले करेंगे वो अपने इल्मे नबुव्वत से करेंगे। और खुदा ने गवाही के लिए जंजीर को लटका दिया, जानते ना, या लोहा नाजिल हुआ दाऊद के लिए, या लोहा नाजिल हुआ अली अलैहिस्सलाम। मौला अली के लिए जो लोहा आया वो जुल्फ़िकार बन गए, हज़रत दाऊद के लिए आया वो जंजीर लटकी जो अदले दाऊद के मुताबिक था। तेरा जानशीन भी वो ऐसा होना चाहिए जैसा कुदरत की अदल है, वैसे तेरे जानशीन की अदालत होनी चाहिए। ये मेरी बात जहन में रखें। इससे एक कदम आगे तवज्जो है कि जब 1,24,000 नबी के नबूवत यानी आखिरी नबी आ गए, अब आखिरी नबी के बाद और कोई नबी नहीं है ना, और कोई नबी नहीं। अब क्या चलेगा, इमामत, सिलसिला इमामत, 12 जानशीन रसूल खुदा। अब अल्लाह सुब्हान व तआला ने 12 जानशीन, पहले मौला अली जिनको जुल्फ़िकार यानी आसमान से जुल्फ़िकार नाज़िल, अब अगले आप जितने 11 इमाम में देखेंगे तो जो है कह रहे हैं सारा साहिब जुल्फ़िकार, किसकी
پہنچا دیا میرے. ہر ایک کا انداز ایک جیسا ہے, کسی کے انداز میں فرق نہیں ہے, کسی کے قول میں فرق نہیں, کسی کا قول اختلاف قرآن میں بات نہیں کرتا. جیسا قرآن کہتا ہے ویسا ہی امام کہتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں بولیے, ٹھیک ہے نا. جس طرح 1,24,000 میں ایک نبی صرف تھے جن کو اللہ نے اذن دیا تھا علم نبوت سے فیصلہ کریں, اس طرح 12 اماموں میں میرے آخری امام کو حق ہوگا کہ وہ فیصلہ بغیر گواہوں کے اپنے علم امامت سے کرے. یہ امام زمانہ کو اختیار ہوگا. السلام آئیں گے وہ آپ کے گواہ نہیں, ان کو طلب نہیں کرے گا, وہ اپنے علم امامت سے کرے گا. پھر سوال ہوا یا امام زمان علیہ السلام یہ بتائیے کہ آپ اپنی عدالت کہاں لگائیں گے؟ آخر آپ کی عدالت کس جگہ ہے؟ جواب آیا جہاں جج امیر المومنین نے لگا. کہاں مسجد کوفہ, مسجد الانبیاء. کہا وہاں پر کس مصلی پر؟ جواب آیا بیت تشت پر, جہاں علی علیہ السلام بیٹھ کر فیصلے کرتے رہے. اگر کوئی بھی فیصلہ آیا گواہ پیش کرو. علی علیہ السلام کی ذات کو حکم تھا گواہ پیش کرو. سب سے بڑا مسئلہ کس کا ہوتا ہے؟ رویت حلال کا. بات سمجھتے ہیں, سب سے بڑا مسئلہ کس کا ہے؟ رویت حلال, یعنی چاند نظر آیا یا نہیں نظر آیا. یہ سب سے بڑا فیصلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ رمضان میں اس کا سب سے نازک پہلو ہوتا ہے. اگر رمضان کا آخری روزہ ہے اور عید منایا تب بھی گناہ, اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام. اگر رکھوا دیا تو بھی مشکل ترین منانا. اتنی دنیا کا واجب کس کی گردن پر؟ رویت حلال. تو جو ہے کہ پہلے امام نے سکھایا, دوسرے نے سکھایا, 8ویں نے بتایا, 10ویں نے سمجھایا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تاکہ تم 12ویں کے لیے تیار ہو جاؤ. جب بھی سوال آیا, مولا علی ہے. اب میرا عقیدہ مجھے نہیں پتا, انشاءاللہ آپ بھی مومنات ہیں, آپ کا عقیدہ بھی ویسے ہی ہوگا. میرا عقیدہ ہے کہ چاند طلوع ہونے سے پہلے وقت کے امام سے اجازت لیتا ہے, پھر طلوع ہوتا ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اتنی دیر تک میرا ہے. بڑے اہم نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتی ہوں, بڑے اہم نقطے کی طرف. بے جا گفتگو میرا کرنا مزاج نہیں. یعنی رویت حلال, چاند پوچھ کے جس سے طلوع ہو. کیا اس امام کو نہیں پتا چاند ہوا کہ نہیں؟ لوگ آئے مولا علی کے پاس, یا علی چاند ہوا؟ مولا نے کہا پہلے 2 گواہ پیش کر. قانون قدرت, انداز قدرت, اطاعت خدا. امام ہو کر اتنی اطاعت کرتے ہیں تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ بغیر اطاعت کے بخشے جائیں گے؟ کہ اطاعت واجب ہے, لازم ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اطاعت کرنی پڑے گی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فادعوا الی اللہ ورسولہ. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان عمل. اور اگر کسی بات سے تنازع ہو جائے تو جائے کہ نہیں, جو بھی مجھے سننے آئے ہیں, اگر کوئی اور دوسرا فقہ ہے انہیں بھی دلیل دے دیں کہ اگر آپس میں تنازع ہو جائے, قرآن نے اجازت نہیں دی کہ جا کے کسی اور سے پوچھو. فادعوا الی اللہ ورسولہ, یا اللہ سے پوچھنا یا اس کے رسول سے. کہ اولو الامر کون ہے؟ جب قرآن اجازت نہیں دیتا
इजाज़त नहीं कि आप अपनी मर्जी से किसी को साहिब अमर बना दें। तो जो है कि नहीं है, और अमर वो होता है जिसके ताबे चांद सूरज सितारे होते हैं। अब मेरे मौला ने कहा दो गवाह पेश करो, गवाह होंगे तो जो है वो इमाम कह देते हाँ कल हुआ कल ईद, लेकिन इमाम ने नहीं वो रास्ता दिखाया जहाँ हर इंसान हर वक्त मोहताज इमामत रहे। समझ लगी कि नहीं? अपनी भी अकल से सोचो हुआ कि नहीं हुआ, गवाहों को तलब करो, फिर मालूम होगा कि ये हुआ या नहीं। इमामतों ने सिखाया, इमामतों ने बताया, इमामतों ने समझाया। इसी तरह से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी जो कदम उठाते हैं वो मर्ज़ी इलाही से उठाते हैं। समझ आई कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन सिर्फ दूसरों को नहीं है, इसमें कई शिया ज़बानें हैं, क्योंकि हम शिया जज्बाती शिया। दीन जज्बात का नाम नहीं है, दीन हक़ाइक़ पर मबनी है। दीन को जज्बाती शिया नहीं चाहिए, दीन को हक़ाइक़ पे मबनी शिया चाहिए। तो जो है कि नहीं है, इसीलिए दरवाज़ा इमाम पर शख्स ने आके कहा मौला मैं आपका शिया। इमाम रज़ा ने कहा मत कहो अपने आप को शिया, मत कहो अपने आप को शिया। क्या कहे मौला, तो अपने आप को क्या कहें? मौला ने कहा तुम में खसूसियात शिया नहीं है, खसूसियात शिया नहीं है। तो कहा मौला हम क्या है? कहा तुम कहो हम मुहिब्बे आले मोहम्मद। इसका मतलब शिया होना मंजिल और है, मुहिब्बे आले मोहम्मद होना और है। इसका मतलब मोहब्बत कोई भी कर सकता है, मोहब्बत कोई भी कर सकता है। शिया बनने के लिए शराइत है, शिया होने के लिए शराइत है कि शिया की खूबियाँ नजर आए। तो जो है कि नहीं कि हमारे वजूद में शियत की खूबी नजर आए, ताकि हमारा ईमान कहे मेरा शिया आ रहा है। तो जो है कि नहीं, और इसमें एग्जाम्पल एक ही जुमला कहूँ, माशाल्लाह इज्माअलन आप सब बैठे हुए, मुझे नहीं पता, मैं कभी इस चीज़ को नहीं जानती, ना मैंने कभी किसी के साथ बैठ के ना किसी से पूछा कि तुम्हारे शौहर क्या काम करते हैं, तुम्हारा जो है ज़रिए माश क्या है। मैंने कभी किसी चीज़ को बोधन नहीं किया, लेकिन आज इमाम रज़ा की महफिल में एक जुमला ज़रूर कहूँगी कि जिसका शौहर आला पोस्ट पे लगा हुआ है, अपने शौहर को जहन्नुम से बचाइए, क्योंकि जिस मोमिन को आला पोस्ट मिली है उसका पहला फरीज़ा इमाम की रूह से ये है कि वो मोमिनों का काम करे, ना कि अपनी सीट पर बैठकर जम जाए। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्यों? क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा जाता था, मेरे जो है 8वें इमाम से पूछा जाता मौला वैकेंसीज निकली हैं हारून के जो है दरबार में मिनिस्ट्रीज की ऑफरें हमें, मौला चले जाए सीट पर बैठ जाए, सीट पर तो बैठना था। इमाम रज़ा ने कहा नहीं, इमाम उसकी इजाजत नहीं देते जिसमें ईमान खतरे में आ जाए। समझ गए कि नहीं? कि सीट पर बैठ के इसका मतलब नहीं कि तुम गाफिल जिंदगी गुजार दो, जो करो तुम खुद अपनी मर्जियों से कर करा के फारिग होके आ जाओ, और तुम किसी मोमिन के लिए दरवाज़ा न खोलो, किसी मोमिन के लिए कि तुम अपनी आवाज़ को न बुलंद करो, किसी मोमिन के लिए तुम कोई ख्वाहिश और कोशिश न करो। कितने मिसिंग मोमिन के बच्चे हैं जिनको गायब किया गया है, और अगर आज की मिनिस्ट्री की सीट पर या हाई पोस्ट की सीट के ऊपर अगर कोई बैठा मोमिन है तो इमाम ज़माना अपने इल्म इमामत से उसके हक में फैसला करके बता दे, फिर वो इमाम की ग्रिप से बच नहीं सकेगा। अगर 8वें इमाम इस पर कॉन्शियस है तो 12वें इमाम नहीं होंगे। बोलिए, अलग लगी ना मजलिस, पसंद नहीं आएगी, लेकिन ज़रूरी है, हालात हाज़िरा के मुताबिक ज़रूरी है। जिंदाबाद, मुर्दाबाद,
बात में आके कोई नारा तो लगाए, और जब लगाए तो मैं जुमला कह दूं जो मेरे अंदर बेचैनी से मचल रहा है। आपने कहा हुसैनियत जिंदाबाद। हुसैनियत जिंदाबाद तब होगी जब आप चादर में अज़ा खाने आएंगे। समझ आई क्या नहीं? हुसैनियत जिंदाबाद तब होगी। अगर नहीं है तो आप जाने और मेरा इमाम जाने, तो जो है क्या नहीं, ये इस्लाम के असूलों के मुताबिक। यजीदियत मुर्दाबाद तब होगी जब यौमिल अरबईन सारी खवातीन सर से पांव तक चादर होगा, खुद यजीद अपनी मौत खुद मर जाएगा। क्योंकि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इमाम अश्तर सुल्तान अरब वल अजम ज़ामिनान आहूर ज़ा रज़ाए खुदा निछावर जिसके रोज़े पर मुरादें मिल रही हैं, बाबे मुराद हैं, जिनकी माँ को गाजी की माँ के बाद, गाजी की माँ के बाद जिनकी वालिदा को लक़ब उम्मुल बनी हासिल हुआ, हज़रत नजमा खातून। ये दूसरी हैं जिन्हें मर्तबा उम्मुल बनी। आप देखेंगे कि मौला गाजी के रोज़े में भी बाब उम्मुल बनीन है। खुदा आपको ले जाए, काज़मैन में भी बाब उम्मुल बनीन है। एक इमाम रज़ा की माँ बेटों की माँ है, और एक इमाम जो है वो हज़रत अबुल फज़्ल अब्बास की माँ। इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलाम ने अली बिन यकीन को बार बार जो है वो इस बात की तंबीह की, तो उन्हें मिनिस्ट्री की सीट को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि जितने शिया मेरे बाबा के ज़माने में कैद किए गए, सबसे ज़्यादा तकैया हुआ इमाम मूसा काज़िम के दौर में, सबसे ज़्यादा तकैया। इतना तकैया हो गया था, इतना तकैया कि हाकिम उस वक़्त हारून, तो जो है मेरी बात की, वो ढूंढता रहता था कोई शिया मिले मैं उसे कत्ल कर दूँ या दीवार मार। सबसे मुश्किल तरीन आइमा में ज़माना आया, तो ज़माना जो है वो इमाम मूसा काज़िम। उस ज़माने के अंदर इतना सख्त तरीन मुश्किल ज़माना आया कि बड़ी तहकीक के बाद जुमला कह रही हूँ कि इमाम मूसा काज़िम के ज़माने में ज़मीन पर इसमें फातिमा लिखा जाता था। क्या देखने के लिए? अगर शिया होगा तो इस पे पाँव नहीं होगा, और जब कोई पाँव संभाल के दाएं बाएं से गुजरता उसे वहीं से पकड़ते ले जाके यहाँ कत्ल करके ज़मीन में। जैसे आज फ़लस्तीन की नस्ल कशी हो रही है, इसी तरह से उस ज़माने में शीयत की नस्ल कशी हो रही थी, नस्ल ख़त्म की जा रही थी। उस वक़्त का तकाजा था कि इमाम रज़ा ने ये नहीं देखा ये मेरे बाप का कातिल है। इमाम रज़ा ने देखा इस वक़्त वली अहदी में शीयत की निजात। समझ आई ना? इमाम को शौक तख्त व ताज का नहीं था, जिन्हें खुदा ने लौलाद का ताज दिया, जो वारिस व जानशीन रसूल हो, उन्हें ज़रूरत नहीं है ये ज़ाहिरी ताज, ये ताज, ये हुकूमत की। उनको अल्लाह ने हुकूमत दी हुई थी, लेकिन मौला चाहते थे कि जिस घिनौने हालात के अंदर शीयत चली गई है, कम अज़ कम शिया सांस ले सके। ये शीयत की बका के लिए मेरे 8वें इमाम ने पहलुए हारून में बैठना गवारा किया। किस लिहाज से? वली अहदी के लिहाज से। और वहाँ पे मेरे मौला ने कमांड की, तो जो है कमांड की, और कमांड करके कहा अली बिन यकीन वली अहदी में मैं बैठा हूँ, जिंदान में जितने शिया उनको जल्द अज जल्द रिलीव करने के लिए कहा। समझ में आया कि ये है? अगर आपको कोई सीट मिलती है तो आपका काम है, चाहे आप अपने इलाके के थानेदार हो, समझ रहे कि नहीं, या आपको जो है वो DSP की सीट हो या
करवाने के लिए रिश्वत चाहिए होगी। ना समझ रहे कि नहीं? ये सारे फितने जो कि मोमिन में नहीं होने चाहिए, ये अगर हम में है तो हम मोमिन नहीं है। आप समझ रहे कि नहीं? इमाम रजा की सल्तनत अजीमिया को देखिए, मजलूम इतने हैं कि गरीबुल गुरबा हैं, तन्हा हैं। तो जो है मेरी बात की, कितने तन्हा है इमाम रजा, सोचिए। 28 रजब की रात को भी तो आपने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस तरह वलीद के दरबार में गए 18 बनी हाशिमों के जुर्मट में। जो 18 बनी हाशिमों के जुर्मट में वलीद के दरबार में जाए, वो इमाम हुसैन है। और जो कोई भी ना मिले, सिर्फ अबा सलत के साथ मामून के दरबार में जाए, वो इमाम रजा है। समझ आए कि कितने गरीब थे? समझ आए कितने गरीब थे? समझ आए कितने गरीबी, यानी कि पैसे की गरीबी। जो मदीने से दूर है उसे गरीबुल गुरबा कहा जाता है। सबसे दूर अपने वतन से लाकर जिसे मारा गया, वो मेरा 8वां इमाम। बात को समझिए, बात की गहराई में जाइए। किस तरह से अपने अंदर वो उसको पैदा किया दुश्मनाने आने वाले। जाहिरन खड़े हुए हैं, मामून हो या हारून, क्या कर रहे हैं? अपनी बाहों को फैलाया, अपनी बाहों को फैला के कहा आलन व सहलन या बिस्रहुम, ए मेरे चचाजाद आओ, मेरी बाहों में आओ। कभी रुखसात चुनता है, कभी कुछ चुनता है, कभी हाथ चुनता है। अंदर से क्या सोच रहा है? कत्ल इमाम रजा। इमाम रजा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बहुत से ऐसे वाक़यात थे, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि जो वक्त का तकाज़ा है उसको अंजाम दिया जाए। अगर काबिल क़ज़ाई का कलम चलता है तो बखातिर इमाम रजा चलता है। अगर मारूफ करके आकर अपने जो है वो जिस्म को गीला करके माशकी बनता है, तो मेरा मौला इमाम रजा की खातिर सिर्फ माशकी बना। सोचिए, क्वालिफाइड इतना था कि जब चाहे तहरीर इमाम रजा को, और आप खुद सोचिए इमाम रजा की 300 सफ़ात पर किताब, जिसे अयून अखबार कहा जाता है, इमाम रजा का अयून अखबार, जिसमें अहादीस इमाम रजा है, 300 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे हिफ्ज़ हो उसे मारूफ करके कहते हैं। समझ में आए कि कौन है? ऐसे मोमिनों की इमाम को जरूरत होती है। मारूफ करके इतना इल्म रखता था, लेकिन मुलाकात इमाम, आशिक इमाम के लिए अपना जो है वो प्रोफेशनलिटी क्या इख्तियार की? मश्क से पानी बनी। जमाना तो तब्दील हुआ है, लेकिन सिलसिला है आगे भी। अगर आप नेस्ले का प्योरीफाई पानी पीती हैं तो आपको नेस्ले वाले आकर देकर जाए, ये क्या है? ये माशकी तो है जो पानी दे जाए। अब हमने उसको मॉडर्नाइज कर दिया तो हम समझते हैं ये और मरहले पर आया। नहीं, ऐसा नहीं है। उस वक़्त मारूफ करके ठंडी खुरासान की रातों में पानी भरकर इमाम रजा के घर में जाके डालता था। कपड़े भीगे होते। अब मुझे बताइए, बाहर चारों तरफ बर्फ पड़ी हो, कपड़े आपके गीले हों और आप चल रहे हों, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बीमार होंगे कि नहीं? बोलिए, जवाब चाहिए, इज्तिमा से जवाब चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन वो कर रहा है। लोग कह रहे हैं आप मारूफ करके मर जाओगे, क्यों रातों में जाते? सूरज निकलने दो। उसका एक ही जवाब था, अगर सूरज निकले गया तो दरवाजा गुलाम रजा खोलेगा, अगर तहज्जुद में गया तो इमाम रजा खोलेगा। इमाम रजा अलैहिस्सलाम दीदार इमामत के लिए इंसान अपने स्टेटस को गिराता है।
اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیتا ہے کہ امام سے ملاقات ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں سمجھتی جتنی نوجوان بیٹیاں میری یہاں سن رہی ہیں انشاءاللہ آئندہ کبھی بغیر چادر کے گھر سے نہیں نکلے گی، ہے نا. اس نے اپنی پرسنالٹی گرا کے معاش کی بننا گوارا کیا. کیوں؟ کیونکہ امام کی نظر کا متمنا. آپ صرف چادر نہیں دے سکتے. میں نہیں کہتی میرے جیسے جو آپ نے کم از کم سوٹ کیا ہے اسے سر کو اچھی طرح ڈھانپ کر تو نکل سکتے. توجہ ہے میری بات کی؟ اور مجھے خود سمجھ نہیں لگتی. میں نے کئی مرتبہ پوش ایریاز میں بھی پوچھا ہے، اچھے خاصے لوگوں سے پوچھا ہے، مجھے یہ بتائیے یہ جو آپ ٹراؤزر ٹخنے ننگے کر کے پہنتی ہے کیا مزہ ملتا ہے؟ مجھے بتائیں تاکہ میں بھی پہن کے دیکھوں. سارا رستہ آپ گزر کے آئے، مرد آپ کے ٹخنے دیکھ رہے ہیں. یا آپ دین پھیلا رہے ہیں یا آپ مردوں کی بربادی کر رہے ہیں. فتنہ ہے یہ فتنہ. بے شک میری مجلس کسی کو نہیں اچھی لگتی لیکن حقائق یہی ہے، اسلام کا طریقہ یہی ہے. بے شک بے شک. کیوں اماموں کے ساتھ لوگوں نے جو ہے وہ جینا پسند نہیں کیا؟ کیوں؟ کیونکہ امام کی بات ماننی گوارا نہیں تھی. اور آج وہی ہم نہیں کر رہے ہیں. اگر وہاں ہم دیکھتے ہیں عداوت تو ہم فوراً کہتے ہیں لعنت ہو ان پر. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں امام رضا کہاں ہے؟ صرف امام ضامن ماننے سے ضامن نہیں ہوتے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ زیادہ زحمت نہیں، میں میسج دینا چاہتی تھی، میں نے دے دیا. امام رضا علیہ السلام وہ عظمت کے مالک ہیں. آج بھی آپ دیکھیں عاشقین امام رضا سے حرم ایک سیکنڈ کے لیے خالی نہیں ہے. سب سے زیادہ لوگ محروم میں زیارت جس کے رہتے ہیں نا وہ امام رضا. اور جا جا کے میں نے خود دیکھا ہے کہ جھومنا محال ہے، سیکنڈ وہاں کھڑے ہونا محال ہے. بلکہ مجھے بڑا ایک خوبصورت جملہ کہ جن کا نام خالہ کربلائی تھا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، مجھے کہتی ہوتی تھی زکیہ بہن اگر کبھی کسی نے فشار قبر دنیا میں دیکھنا ہے وہ امام رضا کی زیارت ہے. یعنی اتنا فشار ہجوم میں مرد میں خدا ہوتا ہے اتنا زیادہ کہ انسان کی پسلیاں دب جاتی ہیں جب امام رضا کی زیارت ہے. کس وجہ سے؟ عاشقین امام رضا. امام رضا کے چاہنے والوں میں کمی نہیں ہے. ہم تو 2 منٹ وہاں بیٹھ کے نہیں پڑھتے جتنے ہم ضعیف عورتوں کو وہاں بیٹھ کے امام رضا سے توسل کرتے ہوئے دیکھتے اور آپ کے ایسے کہہ رہے تھے جیسے انسان اپنے گھر کے بزرگ سے کہہ رہا تھا یا امام رضا میں آپ سے یہ لینے آئی ہوں، مجھے دیجیے مجھے دیجیے. اور ہم عربی کے تکلف میں فارسی کے تکلف میں وہاں کھڑے ہی رہتے ہیں. ہمیں مانگنے کی جسارت میں ایسے مایوبی سی محسوس ہوتی. اپنی زبان میں بولے، اب اپنی زبان میں کہیں امام رضا میں یہ لینے آئی ہوں. امام ہوتا ہی وہ ہے جسے ہر ایک کی زبان آتی ہو، جو ہرنی کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں، جو چڑیا کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں، جو اسحاق کی زبان کو سمجھتے ہیں. وہ امام رضا میری اور آپ کی زبان نہیں سمجھے. وہ تو ضامنان غریبان ہے، مونسان غم کو سالان ہے. مامون نے ارادہ قتل امام رضا شاید کیا. اس کے ارادے میں عجب سا عالم تھا. اس کے اندر اتنا بغض امام رضا تھا کہ جب شہرت امام رضا، علمیت امام رضا، مناظرہ امام رضا کو دیکھتا تھا اور لوگوں کو گرویدہ انداز دیکھتا تھا تو فوراً ایک ہی جملہ آتا تھا، کس طرح اس کو ختم کر. سوچ رہا تھا برہم بھی رہ جائے، قتل بھی ہو جائے. آخر اس نتیجے میں پہنچا تلوار سے کیا تو لوگوں کو پتا چل جائے. ایسا قتل کرو کہ لوگوں کو خبر نہ رہے. اور عرب اور عجم میں یہ دستور ہے پہلی فصل آئے تو وہ بادشاہوں کے محل میں آتی. حکومت کا تواضع
फसले अंगूर आई, दरबार मामून सजा, चारों तरफ कुर्सियां लगी, आगे तश्तों में अंगूर आला नस्ल का रखा गया। इमाम रजा से कहा कि हम अंगूरों की फसल की आगाजी आपसे करवाना चाहते हैं। मेरे हाथ में इमाम को बुलाया गया, मेरे मौला को खबर थी, मेरे मौला अबा सलत को साथ लेकर, मेरे मौला ने अबा सलत से कहा, अबा सलत दरबार के बाहर खड़े रहना, अगर मेरा चेहरा ढका हुआ बाहर आए तो समझ लेना कि खैरियत नहीं है, और अगर मेरा चेहरा खुला हुआ हो तो समझ लेना खैरियत है। सवाल रजा से ना करना। इमाम रजा अलैहिस्सलाम जिस वक्त चले, अबा सलत कहते मैं पीछे पीछे इमाम के चल रहा। इमाम ने अंगुश से इशारा किया, मैं बाहर रुक गया, मेरा मौला अंदर चले गए। अंदर पूरा दरबार लोगों से, मशीरों से, मुफक्किरों से, मुबल्लिगों से, मुशाइख से बना हुआ था। हर एक के आगे तश्त अंगूर रेशमी गिलाफों में ढके हुए पड़े। इमाम का इस्तकबाल ऐसे किया जैसे इससे ज्यादा कोई इमाम का चाहने वाला ही नहीं। अजर को मिन अल्लाह तआला, सैयद आपको किसी गम में ना। आज का दिन का सदका आपको मेरे मौला की ज़ियारत जल्द अज जल्द हम सबको नसीब। इस्तकबाल किया, इमाम को बगलगीर किया, उसके बाद कहने लगा अपनी नश्ती तौरात की मैंने अंदर कमरे में रखी, आप अंदर आए। अंदर इमाम को ले गए, वहाँ भी मेरे मौला के लिए मेज पर तश्त रखा हुआ, रेशमी गलाफ से उसकी निकाब पोशी करनी थी। इमाम रजा को बैठने का इशारा किया, मेरे आगे में इमाम बैठे, सामने खुद बैठा, निकाब अंगूर हटाया, हटाने के बाद अपनी आंख से इशारा किया जल्लाद को, दरवाजा बंद कर दो। जब दरवाजा बंद हो गया, इमाम से कहा, जल्लाद पीछे खड़ा है इमाम के। एक मर्तबा कहता है तनावुल कीजिए, बिस्मिल्लाह, मैंने भी तोड़ा है, आपने तोड़ी। उसने जब तोड़ा तो कहा बिस्मिल्लाह। मेरे गरीबुल गुरबा इमाम ने जब तोड़ा तो मेरे मौला ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। घबरा गया, घबरा के कहने लगा बताइए तो सही, आपने ये क्यों कहा? कहा इसलिए कहा कि मैं जानता हूँ तू करना क्या चाहता है। जल्लाद को इशारा किया कि निकालो तलवार को नयान से, अगर नहीं खाएंगे तो मैं कत्ल करवा दूंगा। जबरन इमाम के दान में से 3-4 अंगूर जहर हिलाइल से भरे हुए इमाम के दहन में डाले। इमाम का गला एकदम से जो है जहर के असर से, मेरे मौला उठने लगे। कहा कहाँ चले? कहा जहाँ तू भेज रहा है। मेरे मौला उस हुजरे से निकले, मेरे मौला आए तो चेहरा ढका हुआ था। अबा सलत कहते हैं मैं इमाम के पीछे पीछे जा रहा था, मैंने देखा जब इमाम ने अपना रुमाल घर आकर हटाया, इमाम का रंग बदल रहा था। जिसने मेरी 13 सफर की मजलिस सुनी हो या 12 सफर की मजलिस सुनी हो, मैं 10 बस्ता एक जुमला वहाँ कहा था, मेरे 12वें इमाम ने ये जुमला कहा था, सुन सकेंगे अज़ादारा ने।
اللہ کے سوا